Everybody, once again I welcome to all the participants of this 3-day training program on basics of groundwater, exploratory drilling and the groundwater management issues. Today we are here with experts of these drilling activities. We have with us Mr. S.C. Prasad, who is the head of the office of this drilling division, and along with him our K.S. Das, DIC in charge, and the other Khan Saab and all officers of this division. So we have 3 practical demonstration sessions here today. First is regarding the exploratory drillings, how to construct the deep wells, bore wells and the other types of the wells. What types of the machineries we use, what type of rigs, and what is the types of the pipes, slot pipes, and the packing of gravel, what type of gravel, and what is bentonite clay. Everything we will see here, different types of pipes also. So basically we will show you one by one all the basics and its machinery parts, peripherals, and parts of the drilling activity. So I request to our S.C. Prasad sir, so he will explain with us one by one, and if you have any queries regarding these machines, we have with us one machine drilling rig is here. So along with this, what are the activities we can do, and in which type of formation, either in alluvium formation or in hard rock granite formation, or either in the boulder formation, which type of area, which type of formation we can do drilling by using this rig, then we will discuss with you. If it is covered, then what type of these pipes will be used for housing pipe, then what type of is suitable for PVC pipe or MS steel pipe, or any whatever you like. So based on these activities we will discuss with you. And yesterday we have discussed with you that the gravel packing, that is size of the gravel should be 2.5 mm to 4 mm size. So exactly we discussed about sieving also. We cannot directly use that gravel. Okay, in most of the case, you know, in our city Guwahati also, contractors and the drilling team, they have used locally available chips. Like even the broken piece of these households, they have used as a gravel. Sometimes we catch them in some parts of the GS road also. These activities should be avoided, and we are the responsible government organization. We have to block them to use such type of the activities, and otherwise they will find it's fine. After construction of the well, you know, after 3-4 months that will be disturbed. No discharge will be come up. Then your activity of the pump, everything will be disturbed due to that gravel packing. Gravel packing is very important. So we will show what type of gravel should be packed. We have with us here. So I request our Prasad sir, you start these activities here. You can explain one by one. ड्रिलिंग में हम लोग सरफेस से लेकर के टारगेटेड डेप्थ तक पहुंचने का रास्ता तय करना पड़ता है। सरफेस से लेकर टारगेटेड डेप्थ तक का रास्ता पहुंचने के लिए उसके बीच बीच में क्या आएगा, कौन कौन सा स्टेशन आएगा, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आएगा, उसके लिए हमको तैयारी करके चलनी पड़ती है। तो उसी के हिसाब से जैसे कि फॉर्मेशन में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि हम लोग का अलग अलग का मशीन भी यूज होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको हार्ड रॉक में जाना है तो उसके लिए अलग मशीन है, आपको एलुवियल फॉर्मेशन में जाना है उसके लिए अलग मशीन है, और अगर आपको पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है बोल्डर फॉर्मेशन में तो उसके लिए अलग से मशीन है। तो इन जनरल थ्योरी क्लास में कवर अप हुआ होगा आप लोग का, और ये प्रैक्टिकल सेशन है
और ये प्रैक्टिकल सेशन में यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जो कि एलुवियल फॉर्मेशन में काम करती है मशीन। ये रोटरी रिग बोलते हैं इसको, डायरेक्ट रोटरी DR वोल्टाज। तो इसमें हम लोग एक अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये मशीन में क्या काम करता है, कैसे करता है, और इसका मतलब कि डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होना चाहिए। तो ये जैसे कि एलुवियल फॉर्मेशन में काम करके और ये कुछ रिपेयरिंग वर्क के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो आज हम लोग वोल्टाज, ये जो रिग है हमारे पास में, ये डायरेक्ट DR वोल्टाज 75 51 52, ठीक है। हमारे पास 2 रिग है, एक 51 है, एक 52 है, ये 52 है। DR represent the category of the rig, that is direct rotary DR, वोल्टास कंपनी का नाम है, एंड 75 इज़ द मैन्युफैक्चरिंग, एंड उसमें जो मैन्युफैक्चरर ने जितने रिग बिक्री किए उसके हिसाब से ये 52 नंबर है। तो इसके इतिहास के हिसाब से ये 75 का रिग है। 75 के हिसाब, मतलब बहुत लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा या किसी का तो जो है न्यूली जॉइन 75 में तो जन्म नहीं है। तो 75 का रिग है, तो अभी 75 2025 47 ईयर से आसपास हो गया। और इसके बगल में इससे भी पुराना रिग खड़ी है, 69 का है। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा बताने में ये सहूलियत होगी कि आप लोग सब लोग के पास में रिग मशीन है क्या? हाँ? पहले था डिवीजन में, अभी डिवीजन नहीं। हाँ? पहले डिवीजन में था, अभी नहीं, अभी तो आउटसोर्सिंग होता है। बिल्कुल मशीन नहीं है। वेरी गुड। तो आप लोग कैसे काम करते हैं? आउटसोर्सिंग। ठीक है। कौन सा एरिया में काम करते हैं? अभी JJM चल रहा है। JJM मींस टू बी कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट लुक्स एंड द कॉर्नर्स। तो बट लेकिन आपको उसमें पता है कि वहाँ पे कौन सा मशीन चल रहा है, DTH चल रहा है कि रोटरी चल रहा है, परकशन चल रहा है, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा बहुत फैमिलियर है इसका मतलब। तो इसमें हम लोग नीचे से शुरू करेंगे। आप लोगों को सब कुछ पता है, ऊपर में बाद में पहुँचेंगे। जो ड्रिलिंग में मेन काम कौन करता है? मेन जॉब किसका रहता है ड्रिलिंग में? सिर्फ बिट का बात नहीं करेंगे। ड्रिलर तो है, ड्रिलर तो करेगा, लेकिन ड्रिलिंग में आपका ड्रिल स्ट्रिंग, ठीक है ना? ड्रिल स्ट्रिंग में क्या क्या पार्ट आएगा सर? ड्रिल स्ट्रिंग जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या पार्ट आएगा? हाँ? यस। हाँ? आप एकदम माने ये पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा आप स्टेप बाय चलिए। जैसे प्राणायाम करते हैं ना हम लोग, उसी हिसाब से। जैसे आप शुरू से नीचे में क्या हो गया? ड्रिल बिट। उसके ऊपर में क्या आएगा? उसके ऊपर क्या आएगा? वेरी गुड, तालियां बजाओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर आपका नाम? आशीष मोहन। हाँ, कहाँ से आप? मैं सरायदेव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ? सरायदेव शिवसागर। सरायदेव। ठीक। अब स्टेबलाइजर के ऊपर जाइए। हैं? तालियां ज्यादा ही बज गई लग रहा। नहीं, कोई नहीं। एक मिनट। स्टेबलाइजर तक आपने पहुंचे, पहले बिट आया, फिर क्या आया? रुको यार, आप लोग मत बोलो। पहले बिट आया, फिर आया सब का काम अलग है, मैं बताऊंगा। सब बिट के ऊपर ड्रिल कॉलर के ऊपर उसके ऊपर तो पाइप ही आएगा ना, और क्या आएगा? अगर आपका उसमें क्या होता है, जब असेंबली हम लोग बनाते हैं तो स्टेबलाइजर का काम क्या है, मैं इसलिए स्टेप बाय इसलिए जा रहा हूँ कि आपको बताऊंगा कि किसका क्या पर्पस है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि आपको
गुवाहाटी से दिल्ली जाना है तो आपको जानना पड़ेगा कि बीच बीच में कहाँ रोड आ रहा, कहाँ ट्रेन आ रहा, कहाँ आग लगा हुआ है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमको बस से जाना है कि शिप से जाना है कि हवाई जहाज से जाना है। तो ये सारा सिस्टम प्रैक्टिकल सिस्टम है। इसमें हम लोग नीचे से डिसाइड करेंगे ये ड्रिल स्टिंग में क्या क्या रहता है। हम लोग ड्रिल पाइप तक पहुंच चुके हैं। अब उसके आगे ऊपर बढ़िए। हाँ, उसके बाद पाइप से जो गियर शाफ्ट मूवमेंट कराता है। और बोलिए, और आगे। हाँ, मास ड्रिलिंग स्टिंग कहाँ है? आप एकदम नीचे पैर से शुरू किए हैं, सर तक पहुंच गए हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिस चीज से ड्रिलिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों ने केली का नाम सुना है? हैं? हैं? केली सुना है ना? तो वो कहाँ लगेगा? हाँ, सुनिए, मैं इसलिए कि क्योंकि आप लोग का जो भी पढ़ लिख के आए ना, यहाँ पे वो प्रैक्टिकल इंटरेक्शन होने से सब लोगों का फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि मड पंप से मड आएगा और वो स्विबल या क्या बोलते हैं उसको, गुजनेक, गुजनेक। ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड गुजनेक? गुज का मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है, ये ड्रिलिंग रिग का जितना भी पार्ट्स है ना, ये जंगल में चलता था, तो इसलिए सब जंगल के आदमी लोग के नाम रखा हुआ है। कैट वॉक, डॉग हाउस, क्राउन ब्लॉक, गुजनेक, मंकी बोट। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मड जहाँ से घुस रहा है वो केली में आ रहा है। केली का ही काम है आपको रोटेशन कैसे घूमेगा, कैसे आपका जो बिट है और ड्रिल कॉलर है, जो ड्रिलिंग स्टिंग आपने जो बनाया है ड्रिलिंग करने के लिए, वो हाउ विल गेट द रोटरी मोशन? टेल मी। विद द हेल्प ऑफ केली में हम लोग रोटरी देते हैं और वो उसके बीच में रोटरी टेबल का काम होता है। और ये केली ही होता है कि 1 बाय 1 ड्रिल पाइप जोड़ते हैं और वो नीचे जाता है, फिर निकाल के लाते हैं। अभी सब कुछ क्लियर है? ड्रिलिंग स्टिंग हाँ क्लियर है? क्लियर। कोई डाउट? आप बताइए नीचे से क्या होता है? कोई बताइए, फटाफट बताइए नीचे से क्या क्या है? बिट, बिट के ऊपर में आपका हो गया ड्रिल कॉलर। लेकिन बिट और ड्रिल कॉलर के बीच में हम लोग और एक पार्ट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बताइए? सब। किसी ने सब बोला था। सब क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द सब? डायरेक्ट भी तो लगा सकते हैं ना। मूवमेंट कंट्रोल करने के। सब जो है एक छोटा सा पार्ट है। ड्रिल कॉलर बहुत महंगा है और ये ड्रिल कॉलर बिट घिस गया, बिट को हम लोग अलग कर दिए। ड्रिल कॉलर महंगा पार्ट है, उसका थ्रेड एक बार अगर डैमेज हो जाएगा तो अब जैसे हम लोग आज के डेट में ड्रिल कॉलर खोजने जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं। अभी मैं जिस लाइन पे जाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए हैं? तो उसके बीच में एक सब दिया जाता है, क्योंकि जो बिट बार बार जो खुल रहा है, अगर वो उसका ख़राब भी हुआ तो हम सब इधर से खोल करके साइड कर दिए, दूसरा बना लेंगे। ठीक है। किसी ने सब बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ सब। दूसरा, स्टेबलाइजर। बिट क्यों लगना है आपको मालूम है? काटना है उसको। ड्रिल कॉलर क्यों लगना है? सब लगना है क्यों? कि हमको ड्रिल कॉलर का थ्रेड को प्रोटेक्ट करना है। ड्रिल कॉलर का ऊपर में हमने
जैसे इन्होंने बोला स्टेबलाइजर, बहुत लोगों को नहीं पता है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि ये डिप ड्रिलिंग में यूज होता है स्टेबलाइजर। डिप ड्रिलिंग में क्या होता है, जब आप बहुत 3-4 हज़ार मीटर की ड्रिलिंग करेंगे तो उसकी वर्टिकलिटी ख़त्म हो जाती है। तो वर्टिकलिटी को ख़त्म करने ना हो, माने कि इंक्लाइनेशन ज़्यादा नहीं हो वेल में, इसलिए स्टेबलाइजर देते हैं, क्योंकि वो बिट और कॉलर के ऊपर में वो स्ट्रेट करके रहता है पूरा ड्रिलिंग स्ट्रिंग को, तो आपको वेल डेविएट होने से रोकेगा। ठीक है, वही स्टेबलाइजर का काम हो गया। और उसके पास ड्रिल पाइप है, ये है। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर विद द BHA? BHA क्या है? बॉटम होल असेंबली। आप लोगों ने पहली बार नाम सुना शायद। ठीक है, ये जो नीचे में आपने जो भी लगाया ना, बिट, ड्रिल कॉलर, सब एंड स्टेबलाइजर, दैट कंप्राइजेज BHA, जिसको बोलते हैं बॉटम होल असेंबली। इसको ऊपर में आपका ड्रिल पाइप जोड़ जोड़ के आप ड्रिलिंग करते जाइए। और BHA का काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ BHA? मैं आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में चला गया। तो अब ये हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? केली तक पहुँच गए थे। केली के बाहर निकले, गुजनेक में गए, जहाँ स्विवेल बोलते हैं। स्विवेल का काम है वो मड ले करके स्विवेल में डालना और वो केली को रोटेशन देना, बियरिंग लगा रहता है, और वो केली आकर के रोटरी टेबल में इंगेज होता है और फिर हमारा ड्रिलिंग का काम चालू हो जाता है। ये है मेन थ्योरेटिकल पार्ट। मड पंप में मड कहाँ से आता है? उसके लिए हमारे पास रिग में मड पंप लगा हुआ है। ठीक है, मड पंप कितने तरह का होता है? एनी आइडिया? इट मे बी डुप्लेक्स, इट मे बी ट्रिप्लेक्स। ठीक है ना, उसमें मतलब कि डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स का मतलब है कि उसमें कितने लाइनर लगे हुए हैं, और उसका एक अलग ये रहेगा, क्या बोलते हैं, मड पंप का कैपेसिटी रहेगा कि वो एक स्ट्रोक मारा तो कितना मड उसमें से बाहर निकलेगा। ठीक है, और उसमें आप लोगों ने वो कैलकुलेशन हो गया सर इन लोग का? वो ये अगर जैसे मड जो आ रहा उसका वेट कितना होना चाहिए, हाइड्रोस्टेटिक मड यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ द थिंग, मड क्यों यूज करते हैं? ड्रिलिंग तो करना है, ड्रिलिंग टूल हो गया, ये हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ मड, पहले बताइए। नहीं तो ढीला नहीं होगा। हाँ, तो जस्ट वो करने के लिए, क्या? करने के लिए, हाँ, माटी को ढीला करने के लिए। माटी को ढीला करना है। वो भी नहीं, कल क्या क्या बताया था वो खनिकर साहब ने? हाँ, वो तो बेंटोनेट क्ले का काम है, वही मारे। तो वही मड है। मड क्या है? मड क्या है? मड इज नथिंग बट द पेंटोनाइट क्ले ओनली। तो मैं आपको तो देखिए, हमने केली यूज कर लिया कि उसको घुमाना है, बीट यूज कर लिया उसको काटना है, ड्रिल कॉलर यूज कर लिया कि उसमें वेट देना है, और उसमें स्टेबलाइजर इसलिए यूज कर लिया कि उसको वर्टिकलिटी मेंटेन करना है। अब हम लोग पहुंच गए, स्विवेल क्यों लगाया? स्विवेल इसलिए लगाना है कि वहाँ से मड का ट्रांसफ़र होगा और वो केली को घुमाएगा भी। यहाँ तक समझ गए? मड क्यों यूज करते हैं? ट्रांसमिसिबिलिटी जीरो, ट्रांसमिट हुआ था, फोर्स हुआ था, সেইটো কথা কৈছিল ছাৰে। না মাড মানে এইটো দিব কাৰণে মাড আৰু গোবৰৰ পৰা কি মাডটো দিছিলে আপোনাৰ বস্তুখিনি যাতে কেপচাইড হৈ নাযায়, যিখিনি আপোনাৰ ড্ৰিলিং কৰি দিলে তাৰ পৰা এটা সৰু লেয়াৰ ৱাল লেয়াৰ এটা वाल टाइप लेयर। पहला मेजर मैंने क्यों मड क्यों डाल रहे हैं हम? मेडिकल टर्म में बोलो ना, वो आप ऑपरेशन का पहले क्या देते हैं? हाँ, नहीं वो नहीं है। वो भी है। आप देखिए, एनेस्थीसिया ठीक है, आप ड्रिलिंग करोगे, वहाँ पे कटिंग होगा, बाहर कैसे आएगा? बाहर कैसे आएगा भाई? कौन निकालने के लिए जाएगा वहाँ पे? तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है मड का, कटिंग को ऊपर निकालना,
ठीक है, फ्लशिंग उसी से मड से ही होगा, अदरवाइज दूसरा मड का पहला यूज है। और मड का एक होगा कि जो मिट्टी काट दी आप तो निकलेगा कैसे वहाँ से, हैं? उसमें तो आप डीटीएच में जब कंप्रेसर चलाते हैं हवा मारते हैं तो निकल गया कचरा सारा। यहाँ तो हवा मारने का जुगाड़ नहीं है, तो मड पंप आपको दिया है। तो कटिंग को एनुलस में जो बोरवेल ड्रिलिंग हो रहा है उसके कटिंग को साफ करने का मड यूज करते हैं, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा, मड और क्या क्या हेल्प करेगा? यस, मड क्या करेगा, जो कटिंग कर दी है हम लोग, वो जैसे गांव घर में देहात में जब हम लोग वो करते हैं, मिट्टी का दीवार जब लोग खड़ा करते हैं तो गोबर लगाते हैं, ठीक है, क्यों दीवार गिर ना जाए। तो यहाँ पे सेम काम हमारा मड करता है। मान लीजिए कि 2 मीटर गड्ढा कर दिया हमने, ड्रिलिंग कर दिया, वो हो गया, अब तो क्लब्स हो जाएगा। तो मीटर ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग सर्कुलेशन देते हैं। सर्कुलेशन का मतलब क्या? मड पंप चालू करना और कटिंग को साफ करना। फिर अगर सिर्फ हम ड्रिलिंग करते जाएंगे तो हम पूरा मतलब कटिंग वहीं पे जमा होकर के हमारा वेल साफ नहीं होगा। हमको 1 मीटर 2 मीटर ड्रिलिंग करना है, फिर मड पंप चालू रहेगा, उसको ड्रिल लोड को ऊपर लेकर के उसको सर्कुलेट करके साफ़ करना है। फिर जो नेकेड होल हमारा क्रिएट हुआ वहाँ पे हम सर्कुलेशन देंगे 10-15 मिनट के लिए, तो उस जो मड का लेयर जो लगेगा दीवार में जा कर के, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें एक मड केक बनता है। उसमें मड का एक प्रॉपर्टीज होता है, ये अभी यहाँ पे केमिकल वाले कोई नहीं है, वाटर लॉस प्रॉपर्टी, मैंने मड कितना वाटर छोड़ ये जा रहा, तो वो जा कर के एक केक बनेगा और वो उसको वाल को गिरने नहीं देता है, ठीक है। तो पहला हो गया कटिंग को साफ़ करना, दूसरा हो गया कि वाल को गिरने नहीं देना, जो वेल बनाए उसको गिरने नहीं देना। और एक तो हो गया बाय मेकिंग द मड केक, और दूसरा क्या होगा, जब कोई होल हम सिर्फ खड़ा करके रखेंगे और उसमें कोई थिक फ्लूइड नहीं डालेंगे तो वो गिर जाता है। इसलिए उसको एक मड का एक हाइड्रोस्टेटिक हेड होता है। हाइड्रोस्टेटिक हेड जो है वो उसको गिरने नहीं देगा। कोई डाउट या कोई मैं बोर कर रहा हूँ? हैं? पूरा टेक्निकल सेशन है, जो किसका क्या काम है, क्यों यूज करते हैं, कैसे होता है, उसका ही है। और ये 2 सिंपल लॉजिक है, पहला साफ करना, हाइड्रोस्टेटिक हेड मेंटेन करना, और लुब्रिकेशन एंड कूलिंग ऑफ बिट। भाई आपका नीचे पत्थर को काट रहा है या कुछ भी काट रहा है तो लगातार अगर फ्रिक्शन होगा तो आपका सामान भी तो गर्म होगा ही ना, तो उसको ठंडा करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो एक उसको अगर नहीं ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बिट जो है, बिट में बेयरिंग लगा रहता है, लगातार अगर बिट का बेयरिंग गर्म होगा तो क्या होगा, तो वो लुब्रिकेशन एंड कूलिंग पर्पस का भी काम करता है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। और एक सर्कुलेशन लॉस, सर्कुलेशन लॉस कब होगा, जब ड्रिलिंग, आप देखिए एक बात बताते हैं, ठीक है, मड का और एक काम है, ठीक है, सर ने आया, सर का ने बताया कि अगर हम ड्रिलिंग करते करते अगर कहीं पे हमको ये मिल गया, क्या, कैवर्नस कैविटी मिल गया, बहुत बड़ा फ्रैक्चर मिल गया, जो हम मड डालते हैं वही मड ऊपर आता है। लेकिन कभी कभी मड नहीं आता है, उसमें क्या होता है भाई, एक्सक्यूज मी, पानी अगर हम जो मड डाले और ड्रिलिंग किए, वो मड बाहर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जाकर के क्या हुआ, हाँ, साइड में चला गया। उसको हम लोग बोलते हैं मड लॉस।
उसका टर्मिनोलॉजी ही मड लॉस है, उसका टर्मिनोलॉजी है मड लॉस। हमने जो किया वो लाया नहीं, वो पता चला मड जा कर के नीचे और कैवर्नस कर रहा और भी कहीं जा कर के वो किधर जा रहा पता नहीं। तो उस केस में क्या होता है, इमिडिएटली आदमी को पुल आउट कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या वेल पूरा गिर जाएगा और आपका सारा डेलिस्टिंग ये वो जो है ना फंस जाएगा। तो ये तो थ्योरेटिकल में एक सिंपल थोड़ा सा बता दिया, बट इट्स ए वेरी डीप थिंग। तो अभी ये करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग ये Parts काम को करेंगे, थोड़ा यस, डेमो इसलिए शुरू से हम लोग थोड़ा पार्ट्स दिखाएंगे आपको, कौन सा बिट है, कौन सा सब है, कौन सा डिल कॉलर है, कौन सा केली है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे इंचार्ज हैं जो रिग को ये करते हैं, चलाते हैं, इनके साथ में 15 और लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट को आप दिखाइए। उसका डिप कैपेसिटी कितना है? डेप्थ 300 है ज़्यादा। देखिए डेप्थ कैपेसिटी ये जब आया था, कब आया था? 75 में हैं? तो उसका कैपेसिटी था हैं? अब इसका उम्र कितना हो गया? अभी अराउंड 100 आके बैठे थे। हाफ सेंचुरी चल। अगर हम कैपेसिटी के हिसाब से जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा इसमें। इसको ये जब 75 में था ये 300 मीटर का, 350 मीटर का, 400 मीटर का, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी हो गई है 100-150 मीटर की। अब आप लोग सारे को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, मेरे को इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि भाई अब ये शायद 100-150 मीटर क्यों करेगा। ठीक है सर, हैं? स्टार्ट कर लीजिए, तो आप देखिए बिट से शुरू करिए थोड़ा। डेमोन्स्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि हाँ। नेक्स्ट 2 स्टेप्स जाना है हम लोग हाँ, को। ठीक। ऊपर में ना जाए, नीचे भी नहीं जा सकता। और नीचे जाने से क्या होगा, होल में गिर जाएगा। होल में गिरने से क्या होगा, हमारा वेल बर्बाद हो जाएगा। एक अगर पिन गिर गया तो इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो यही जगह में ड्रिलिंग नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए इसको चेक करने के लिए ये प्लेट दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को रॉड चेंज करना है। रॉड चेंज करने के लिए ये है लिफ्टिंग निपुल। लिफ्टिंग निपुल हो गया, रॉड का साथ हम मतलब एक के लिए हम कर दिया। करने के बाद ड्रिल कलर हम जुड़ दिया। उसका बाद एक रॉड जब हम जुड़ेगा तो ये लिफ्टिंग निपुल से हमको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। उसका बाद उठा के इसको जॉइंट किया, मतलब टाइट कर दिया। उसका बाद फिर केली लगा दिया। केली लगा दिया, हम रोटेशन दे दिया। ड्राई ब्रूश है, केली है, रोटरी है। तो आप लोग देख लीजिए ड्रिल कलर का मतलब बीट का ऊपर क्या लगता है। এইটো কোনটো এইটো এইটো হল এইটো আমি এসেম্বলি রেস্ট করি যেতিয়া বা এসেম্বলি যেতিয়া লোডিং কৰো, লোডিং কৰাৰ টাইমত আমি এইটো এটা ফাউণ্ডেশ্যন বনাই দিওঁ। এই স্লিপ तो लगता है। ये देखिए ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। मतलब केलीपिन जब लगा दिया ना, ये लॉक हो गया। लॉक होने का बाद आप रोटेशन जब देगा ना, वो केली घूमते रहेगा। नहीं तो ये लॉक नहीं होगा तब तक वो घूम नहीं पाएगा। ये ड्रिल कलर 8 इंच का इसमें लग जाएगा। यार पूरा आलू এটা ডাঙৰ আছে তাতে, এইটো 6 ইঞ্চি আছে। এইটো তো বহুত ওয়েট। তার উপৰত চাপ লাগিব এইখিনি।